MBA from a top school in USA, that too without a GRE or a GMAT. Is it really possible? ये क्वेश्चन आपके मन में जरूर आया होगा and if you're just starting out or you are in middle of your top school applications for September 24 intake. Well, let me tell you, this is definitely possible to crack a top school MBA admit for September 24 intake, that too without a GRE or a GMAT. So, in this video, I am going to share with you the top 3 MBA options in USA for fall 2024 intake, where you can apply without a GRE or a GMAT exam. And I will also tell you कि step by step आप waiver कैसे apply कर सकते हैं. So friends, मेरा नाम है पृथ्वी and I'm the co-founder of Ace My Prep. So आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. So before diving deep into our video, friends, I wanted to cover and share a quick update with you. We have been posting a lot of case studies on our website. You can go and check out on our website. You can quickly search for Ace My Prep on Google. Our listing will show up. You can also read through more than 700 positive reviews from our previous students. And once you head on to our website, in the menu you can see we have a case studies section and we have a lot of case studies and we are still updating them on a weekly basis. We're trying to do that because there are a lot of success stories we need to add. Latestly, we have added a journey of Hitanshu from Boston University MBA with $45,000 of scholarship. Also, you can see journey of Sanchit MBA from Erasmus. Then you can also go for Vatsal, who's done BBA with just 1 year of experience and has no GMAT, and he got into UT Dallas. So that's again a case story you should definitely read. So अब हम discuss करने वाले हैं top 3 MBAs in USA where you can apply with a GRE or a GMAT waiver. ये जो भी universities and courses मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारी top 100 rank universities में से है. So you can be rest assured about your ROI. So जो पहला कोर्स और पहली यूनिवर्सिटी हम कवर करने वाले हैं, that is going to be New York University, that is NYU का फुल टाइम MBA प्रोग्राम. नाउ इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में करिकुलम एंड उन चीजों में नहीं जाऊंगा बिकॉज दिस इज नॉट अ कोर्स एक्सप्लेनर वीडियो. कोर्स एंड करिकुलम बहुत ही पर्सनलाइज हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल किसी को क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, किसी को क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं, एंड फॉर दैट रीजन मैं करिकुलम में नहीं जाऊंगा. आई विल स्टिक टू द पॉइंट विच इज द टेस्ट वेवर, कि आप वेवर कैसे ले सकते हैं, आप विदाउट GRE GMAT आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं. सो आई विल शेयर द लिंक टू दिस पेज विच इज द admissions requirements and application requirements for a full-time MBA for NYU. So friends, हम हैं standardized test section में on the admission requirements and application requirements page for the MBA program from NYU. जैसे ही ये पेज खुलेगा, सबसे पहले इस पेज पे as you can see it is very clearly written that Stern has no minimum standardized test score requirements. As you can see, this is a very common pattern in the top schools in USA. वो बहुत क्लियरली अपनी GRE GMAT के रिक्वायरमेंट्स नहीं लिखते हैं अपनी वेबसाइट पे. नाउ वन थिंग दैट द स्टूडेंट्स मस्ट डू बिफोर अप्लाइंग फॉर दीज काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, दे नीड टू चेक द क्लास प्रोफाइल. सो क्लास प्रोफाइल इज द प्लेस वेयर यू कैन सी कि एवरेज GRE GMAT क्या रहा है उन स्टूडेंट्स का जो प्रीवियसली एडमिट हुए हैं, जिनको ऑफर मिला है, जो अभी अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं. सो अगेन यहाँ पे आपका कोई मिनिमम स्टैंडर्डाइज टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है. इस सेक्शन में जब आप नीचे जाएंगे और you can see there's a standardized test waiver section, right? So now this is the section that we are looking for, and यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि कैसे exactly आपको एक GRE GMAT waiver मिल सकता है if you are planning to apply to NYU MBA. Now, so friends, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ में, इस सेक्शन में, सबसे पहले तो it is very clearly written that your standardized test is a required part of your full-time and fashion luxury MBA program. So ऐसा नहीं है कि ये optional है, it is a required part. हाँ, but if you go down and read below, you will also see that इसमें clearly लिखा है you may request a standardized test waiver for a full-time and fashion and luxury MBA program. So आपको waiver मिल सकता है depending you show certain qualities and skills in your profile, and वो skills क्या है वो भी आपको नीचे बहुत clearly लिखी हुई है, which are your strong analytical and quantitative undergraduate or graduate majors, professional work experience, certifications, etc. एंड अब आगे चलते हुए, सो फ्रेंड्स इस सेक्शन में और नीचे चलते हुए यहाँ पे आपको देखना है कि आपका जो वेवर है उसको सबमिट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एंड ये चीजें आपको इसी सेक्शन में नीचे बहुत क्लियरली मेंशन होती हैं यूजुअली, तो यहाँ पे भी वैसे ही मेंशन है. सो टू अप्लाई फॉर अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वेवर यू मस्ट नंबर 1 हैव रिसीव्ड अ बैचलर्स डिग्री प्रायर टू सबमिटिंग अ रिक्वेस्ट, विच मीन्स अगर अभी भी आप अपने 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर में है, 7th 8th सेमेस्टर यानी जो भी आपका फाइनल सेमेस्टर है, आपने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करी है, तो आप ये वेवर फॉर्म या जैसे भी वेवर अप्लाई होता है
आप अप्लाई नहीं कर सकते, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस वेवर। आपकी डिग्री, एक बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होना आपके पास एक रिक्वायरमेंट है फॉर अप्लाइंग फॉर दिस वेवर। सो नंबर 2 रिक्वायरमेंट है हमारी फ्रेंड्स दैट यू शुड बी अप्लाइंग टू अ फुल टाइम MBA और फैशन एंड लग्जरी MBA प्रोग्राम इन 23-24 एडमिशन साइकिल। सो अभी ये पेज अपडेटेड नहीं है बिकॉज वी विल बी नाउ अप्लाइंग फॉर fall 24 admission cycle, right? And many of our students have already applied. In fact, one of our students, Gagan, he's gotten a scholarship of $5,000 per year. So you should definitely apply to NYU MBA program if it fits your aspirations, your goals, and it is definitely recommended that you should apply to first or second round by maximum so that you have higher chances of a scholarship. Then आगे बढ़ते हुए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग MBA प्लस एक डुअल डिग्री के लिए अप्लाई कर देते हैं, डबल मास्टर्स की तरफ, राइट? सो उस डिग्री में यानी डुअल डिग्री कर रहे हैं तो उसके लिए आपको वेवर नहीं मिलेगा, आपको स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट देना ही पड़ेगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स दैट यू शुड सबमिट अ कंप्लीटेड टेस्ट वेवर रिक्वेस्ट बाय मंडे April 1, 2024। सो देयर इज अ क्लियर डेडलाइन आल्सो गिवन कि किस डेडलाइन तक आप जो है अपना स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वेवर सबमिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हुए, नाउ देयर आर सर्टेन आइटम्स दैट यू नीड टू सबमिट विद द रिक्वेस्ट दैट यू आर गोइंग टू मेक फॉर वेविंग ऑफ योर JRE और GMAT एग्जाम। सो वो आइटम्स की क्या लिस्ट है, वो क्या क्या चीजें हैं जो आपको एक वेवर एप्लीकेशन, जब आप वेवर अप्लाई करेंगे तो उनके साथ आपको सबमिट करनी है, उन चीजों की लिस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड है। नंबर 1 इज योर रिक्वेस्ट फॉर्म, नंबर 2 इज योर रिज्यूमे, नंबर 3 इज योर ट्रांसक्रिप्ट्स। देन एट द सेम टाइम इसमें बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि ट्रांसक्रिप्ट्स कैसे होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट और एनी ग्रेजुएट प्रोग्राम दैट यू हैव डन ऑलरेडी इन योर होम कंट्री, दैट इज हियर इन इंडिया। देन इट शुड इंडिकेट ऑल द क्लासेस टेकन, grades received, credits earned, final cumulative GPA and degree conferred। So ये सारी चीजें आपके जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उसमें मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बहुत क्लियरली लिखा है दैट सेल्फ रिपोर्टेड ट्रांसक्रिप्ट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर रिव्यू, यानी आपके जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आपको सेंड करवानी पड़ेंगी आपके होम स्कूल के यूनिवर्सिटी से। देन इफ योर ट्रांसक्रिप्ट इज नॉट इन इंग्लिश, यू मस्ट प्रोवाइड अ सर्टिफाइड ट्रांसलेशन अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट। सो यू नीड टू इंश्योर कि आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट्स आप भिजवा रहे हैं फॉर सबमिटिंग योर वेवर फॉर्म एंड वेवर रिक्वेस्ट, वो इंग्लिश में होनी चाहिए। अगर वो नहीं है इंग्लिश में तो आपको एक सर्टिफाइड ट्रांसलेशन करवाना पड़ेगा एंड वो अटेस्ट करा के आपको अटैच करना पड़ेगा। देन इफ यू हैव अटेंडेड more than one undergraduate institution, you must provide a separate transcript from the host institutions unless all course titles and grades are listed on your primary transcript। So कई बार लोग दो जगह से अपनी बैचलर्स कंप्लीट करते हैं तो इन दैट केस आपको सारी ट्रांसक्रिप्ट्स प्रोवाइड करानी है until and unless आपकी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यानी जो आपके पास एक ट्रांसक्रिप्ट है उसमें दोनों जगह के जो है, दोनों स्कूल्स के आपके कोर्सेज एंड जो भी टाइटल्स एंड ग्रेड्स हैं वो सारे मेंशन हैं, राइट? इफ एप्लीकेबल योर ग्रेजुएट ट्रांसक्रिप्ट यानी आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करी हुई है, आप डबल मास्टर्स या MBA के लिए जा रहे हैं दोबारा से, तो आपको अपने ग्रेजुएट ट्रांसक्रिप्ट भी भिजवानी है, योर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स वर्क ट्रांसक्रिप्ट्स एंड देन योर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस, फॉर एग्जांपल CFA, CPA, CA, whatever professional certifications you may have, you should also attach them. Then you also need to respond to this brief essay of about 300 word limit which says that please list the coursework completed, certifications held and the professional experience you have that demonstrates academic readiness for an MBA program. You may use bullet points. So ये 300 वर्ड्स का एक बहुत छोटा सा ऐसे है जो आपको सबमिट करना है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि हमें ये ऐसे कैसे क्रिएट करना चाहिए, इसमें क्या चीजें हाईलाइट करनी चाहिए। सो देखिए बेसिकली इसमें जो एसेंस है वो एसेंस ये है कि आपको इस ऐसे में अपने क्वांटिटेटिव कोर्सेज, क्वांटिटेटिव जो भी चीजें आपने सर्टिफिकेशंस करी हैं या आपको जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है क्वांटिटेटिव फील्ड्स में रिलेटिंग टू नंबर्स, वो चीजें जो हैं वो आप ज्यादा हाईलाइट करें ताकि आपको वेवर मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि JRE और GMAT एग्जाम का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है, उसका रोल यही है कि वो आपके क्वांटिटेटिव स्किल्स को जज करते हैं इफ यू आर एकेडमिकली साउंड एंड रेडी फॉर एन MBA प्रोग्राम और अ क्वांटिटेटिव प्रोग्राम और नॉट, राइट? सो अगर आप ये दिखा पाते हैं कि ये क्वांटिटेटिव चीजें आपने करी हैं, मैंने पढ़ाई भी क्वांटिटेटिव फील्ड में करी है, मैंने काम भी क्वांटिटेटिव फील्ड में करा है, सो यू हैव हायर चांसेस ऑफ गेटिंग अ वेवर, राइट? सो इस ऐसे में आप अपनी क्वांटिटेटिव कोर्सेज, क्वांटिटेटिव सर्टिफिकेशंस, उन चीजों को आप हाईलाइट करें। देन जैसा कि मैंने बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में बात भी करी है, इस वीडियो में भी देखिए वही एक चीज बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है दैट आपकी एप्लीकेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीजें आपस में कनेक्ट नहीं कर रही हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपने करियर की टाइमलाइन अपने CV में कुछ और बताई है और आप जब ये ऐसे लिख रहे हैं तो आपने कुछ और बताया। फॉर एग्जांपल आप क्वांटिटेटिव एक्सपीरियंस दिखाने के लिए आपने एक ऐसी कंपनी मेंशन कर दी अपने ऐसे में जो आपने अपने CV में नहीं करी है। नाउ दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम,
राइट आपकी स्टोरी कनेक्ट नहीं हो रही, आप एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में सीवी के हिसाब से कहीं और काम कर रहे हैं और ऐसे के आंसर के हिसाब से आप कहीं और काम कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, राइट, तो उस केस में ये गलती होती है एंड इन दैट केस योर एप्लीकेशन फॉर द वेवर में बी रिसेंडेड, दैट इज कैंसिल्ड, विड्रॉन, उसको माना नहीं जाएगा अगर इफ योर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन योर टेस्ट वेवर रिक्वेस्ट डिफर्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन योर एमबीए एप्लीकेशन, व्हिच मींस एप्लीकेशन में जो इंफॉर्मेशन है वो डिफर नहीं कर सकती, आपकी स्टोरी डिफर नहीं कर सकती, आपकी टाइमलाइन डिफर नहीं कर सकती एंड वो सिंगुलर ही रहेगी। आगे चलते हुए नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स का होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट होता है कि इस वेवर का डिसीजन कब आएगा, तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको इस पेज पे दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं दैट द एडमिशंस कमिटी विल रिव्यू द टेस्ट वेवर रिक्वेस्ट ऑन अ रोलिंग बेसिस एंड इन मोस्ट केसेस विल इशू अ डिसीजन विद इन 3 weeks ऑफ सबमिशन, विच मीन्स 3 हफ्तों के अंदर आपका वेवर का आउटकम आ जाएगा, डिसीजन आ जाएगा, या तो आपका वेवर ग्रांट हो जाएगा या आपका वेवर रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो मेंशन्ड, अगर आप देखें आगे, दैट वी स्ट्रांगली एनकरेज सबमिटिंग योर टेस्ट वेवर रिक्वेस्ट एटलीस्ट 3 weeks प्रायर व्हेन यू प्लान टू सबमिट योर एप्लीकेशन। ऐसा क्यों? क्या? क्योंकि उन्हें, जैसा उन्होंने बताया कि 3 हफ्ते उन्हें लगेंगे डिसीजन देने में, तो जब आप एप्लीकेशन प्लान कर रहे हैं अपनी सबमिट करने का ऑब्वियसली डेडलाइन से पहले, तो उससे भी 3 हफ्ते पहले आप अपना वेवर रिक्वेस्ट फॉर्म सबमिट कर सकते हैं सो दैट यू हैव सफिशिएंट टाइम जिसके अंदर आपका डिसीजन आ जाएगा। देन एट द एंड यू कैन सी इट इज रिटन दैट द डेडलाइन, अगेन जैसा हमने पहले ऊपर भी डिस्कस किया, टू सबमिट द टेस्ट वेवर रिक्वेस्ट इज Monday, April 1, 2024, right? Then towards the end I will cover the last most important part of your waiver application, that the standardized test waiver request must be submitted prior to submitting your application to the full-time or fashion and luxury MBA program, which means अब यहाँ पे एक चीज, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अपडेटेड नहीं है, ईयर्स अपडेटेड नहीं है, 24-25 होना चाहिए था, बट कमिंग टू द पॉइंट, वो थोड़े टाइम में यूनिवर्सिटीज अपडेट कर देंगी, राइट। बट कमिंग टू द पॉइंट, आपका जो वेवर रिक्वेस्ट है जो आप सबमिट कर रहे हैं वो आपका एप्लीकेशन से पहले जाएगा, इट विल बी सबमिटेड प्रायर टू सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। सो ऐसा नहीं है कि आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, आपने एप्लीकेशन फी पे कर दी एंड देन आप यू विल सबमिट, तो उसके बाद वो ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपकी फी भी वेस्ट हो जाएगी और आपका रिजेक्ट भी आ जाएगा, right? So in that case you have to be very sure that you have to submit your waiver request prior to submitting your application. So that was a very brief on how you can get a test waiver from NYU for the MBA program. Now coming, अब हम अपने second program, second option की तरफ चलते हैं, which is going to be the Boston MBA, the Questrom School of Business, and ये सारे links आपको description में मिल जाएंगे, so you do not need to worry कि कैसे आप ये waiver कहाँ से submit कर सकते हैं, so वो सारी information मैं cover करूंगा। Again जैसे मैंने NYU के केस में बोला था and बताया था आपको कि I will not go into the curriculum and other things in detail, we will stick to exactly how we can get the GRE or a GMAT waiver, because curriculum जो है वो बहुत personalized choice होता है and student to student differ करता है। Now to begin with, अब हम चलते हैं Questrom School पे and यहाँ पे देखते हैं क्या information हमें given है about how we can get and request a GRE or a GMAT waiver. So सबसे पहले as you can see that it is very clearly written that applicants to full-time MBA program may request a GRE or a GMAT waiver provided you meet at least one of the minimum qualifications listed below, right? So जैसा हमने NYU के केस में देखा कि कुछ इस वेवर को रिक्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ चीजें आपने कवर करी होनी चाहिए, कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, तभी आप एलिजिबल हैं इस वेवर को अप्लाई करने के लिए। एंड उसके बाद कमिटी डिसाइड करेगी, एडमिशंस कमिटी, दैट विल यू बी ग्रांटेड अ वेवर और नॉट। सो ऐसा पक्का नहीं है कि आपने वेवर फॉर्म सबमिट करा और आपको वेवर आ जाएगा, बट उस फॉर्म को सबमिट करने के लिए भी यू हैव टू बिकम एलिजिबल, राइट। सो वो रिक्वायरमेंट्स क्या है वो अगेन जैसे हमने पहले NYU के केस में डिस्कस किया था, अब हम क्वेस्ट्रॉम यानी बॉस्टन यूनिवर्सिटी के केस में भी डिस्कस करते हैं। नीचे देखते हैं, आगे चलते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। सो सबसे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, एंड इट इज सो गुड दैट दिस यूनिवर्सिटी, बॉस्टन यूनिवर्सिटी क्वेस्ट्रॉम स्कूल ऑफ बिजनेस, इतना क्लियरली उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया, बिकॉज जनरली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होता है इतना क्लियरली। सो एज यू कैन सी, आई विल हाईलाइट दिस पॉइंट दैट ऑल कैंडिडेट्स हु आर एडमिटेड टू द फुल टाइम MBA program
are automatically considered for a merit-based scholarships at the time of admission. So जो हमारे existing students हैं जो ये हमारी वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये ऑलरेडी पता है कि जब भी हम एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसके साथ ही हम जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है उसके लिए एक स्पेशल ऐसे एक एक्स्ट्रा ऐसे भी सबमिट करते हैं. सो यू आर ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड फॉर अ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप एंड वैसा ही यहां भी हो रहा है, राइट? आगे चलते हुए, बिकॉज GRE GMAT scores are one of the factors we take into consideration when making scholarship decisions, those who submit a competitive GMAT or a GRE score will receive additional consideration. So अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट करी है एक वेवर के साथ, तो अगर आपको ऑफर आ गया है, राइट, सो ऑफर आना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट, एंड स्कॉलरशिप मिलना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? सो स्कॉलरशिप जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, एम कर रहे हैं, सो दे शुड एम कि उनके पास एक बहुत ही अच्छा GRE और GMAT स्कोर हो, सो दे हैव बेटर चांसेस. एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, दिस इज नॉट द केस विद जस्ट विद दिस स्कूल बट विद अदर टॉप 100 स्कूल्स अक्रॉस द ग्लोब एज वेल, कि अगर आपके पास एक अच्छी प्रोफाइल है, अच्छी GMAT GRE स्कोर है, तो आपके बेटर चांसेस हो जाते हैं स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए. बट as I have mentioned previously, ऐसा नहीं है कि आपके बिल्कुल ही चांसेस खत्म हो जाते हैं, आपके पास फिर भी चांसेस रहते हैं. खाली GMAT और GRE सिर्फ एक एस्पेक्ट है आपके एप्लीकेशन का. देयर आर अदर एस्पेक्ट जिसके थ्रू आप अपनी प्रोफाइल को हाईलाइट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने NYU के केस में बताया था, गगन हु अप्लाइड टू NYU, ही अप्लाइड फॉर अ वेवर, ही गॉट द वेवर, राइट? देन पोस्ट वेवर ही गॉट $5,000 वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप, दैट इज ऑन अ पर ईयर बेसिस, राइट? सो दैट्स वंडरफुल. सो दैट इज द केस. आप ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही इनएलिजिबल हो जाएंगे स्कॉलरशिप के लिए, बट यस, प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास GRE और GMAT स्कोर होगा. देन आगे चलते हुए, ऑन रेयर ओकेजन्स आफ्टर ग्रांटिंग अ GRE और GMAT waiver, the admission committee may ask candidate to submit a GMAT or GRE score to aid in evaluating your candidacy for the full-time MBA program, which means कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको वेवर दे दिया जाए, आपको वेवर मिल जाए, बट उसके बाद एडमिशन कमिटी दोबारा से आपको बोले कि नहीं, आप अब GRE और GMAT एग्जाम दो, तो वो आपको देना पड़ेगा और अपना स्कोर सबमिट करना पड़ेगा. Then, if we need this additional information to complete a consideration of your candidacy, we will inform you after you have submitted the complete application and it has been initially reviewed, which means preliminary इसका review हो चुका है and उसके बाद आपको notify कर दिया जाएगा that you will be required to submit a GRE or a GMAT exam score again or not. Then, आगे चलते हुए friends, बहुत ही again एक important information that GRE and GMAT waiver requests are only considered for application for the fall 24 entry term for the full-time MBA programs, which means if you're applying for online MBA or professional evening MBA, then आपको उनकी admission website पे जाकर separately check करना पड़ेगा. I am in this case just covering the full-time MBA जहाँ पे maximum number of students हमारे apply करते हैं. So इसमें अभी GRE GMAT waiver possible है, आपका waive off हो सकता है depending upon the skills and the eligibility requirements that you clear. So आगे चलते हैं, बहुत ही बेसिक सा फॉर्म है. You have to fill your first name and last name. Definitely you have to make sure जब आप एप्लीकेशन करेंगे तो आप सेम चीज जो है वहां पे भी फिल करेंगे, सेम फर्स्ट नेम सेम लास्ट नेम which should be as per your passport. Then the email that you will be using in your online application, which means कि जिस ईमेल से आपको वेवर मिला है देन उसी से आपको एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है, अकाउंट क्रिएट करना है, सबमिट करना है. आगे चलते हुए, years of post graduate professional full time experience you can select कि पोस्ट ग्रेजुएट which means आपके इंडिया में आपके बैचलर्स के बाद आपके पास फुल टाइम प्रोफेशनल कितना वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको इन ईयर्स एज मेंशन वेरी क्लियरली, जो मैं पहले भी बताता रहता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें कि किस डिनोमिनेशन में आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है. इट इज इन ईयर्स और मंथ्स और वट एवर इट इज. यहाँ पे ईयर्स है तो आपको ईयर्स में इंफॉर्मेशन फिल करनी है. देन जैसे हमने बोला कि वेवर की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिससे कि आप एलिजिबल होते हैं टू सबमिट दिस फॉर्म. सो नाउ यहाँ पर 5 रिक्वायरमेंट्स दे आर मेंशन्ड, तो एक एक करके हम इनको कवर करते हैं और समझते हैं कि किस बेसिस पे हमें वेवर मिल सकता है. सो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है, यू शुड हैव अर्न्ड अ मास्टर्स डिग्री और अदर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, व्हिच मींस इंडिया में या अपनी होम कंट्री पे या कहीं पर भी आपने एक मास्टर्स डिग्री या एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी है, या मास्टर्स, डबल मास्टर्स, PhD, MS, JD, कुछ भी आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी है, सो यू आर एलिजिबल टू सबमिट दिस वेवर रिक्वेस्ट, आपको वेवर मिल सकता है. गोइंग टू द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट व्हिच इज दैट यू शुड हैव अर्न्ड अ प्रोफेशनल और अ क्वांटिटेटिव सर्टिफिकेशन लाइक CFA, CPA और CA. सो कोई भी ऐसी प्रोफेशनल डिग्री या सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यू बिकम एलिजिबल टू सबमिट दिस वेवर फॉर्म. आगे चलते हुए, द थर्ड रिक्वायरमेंट इज दैट यू शुड हैव मेजर्ड इन अ क्वांटिटेटिव फील्ड
दैट इज योर मैथ्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, बिजनेस, विच मीन्स आपके पास जो मेजर था इन योर बैचलर्स डिग्री वो इनमें से कोई एक होना चाहिए क्वांटिटेटिव फील्ड में. नेक्स्ट, द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज दैट यू शुड हैव मेजर्ड इन अ नॉन क्वांटिटेटिव फील्ड विद द GPA of 3.1 or higher if on a 4-point scale, or equivalent of a 3.1 or higher if you are on a different grading scale, which means कि या तो आपके पास जो आपने बैचलर डिग्री करी है उसमें जो आपके पास मेजर्स थे वो आपके पास मैथ्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, बिजनेस, विच आर ऑल ऑफ योर क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स, या तो वो थे आपके पास तो आपको मिल सकता है. बट अगर क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स नहीं थे मेरे पास, राइट, तो मैं कैसे एलिजिबल हो सकता हूं? तो आप ऐसे एलिजिबल हो सकते हैं कि योर GPA शुड बी 3.1 और हायर ऑन अ 4-point grading scale. तो अगर इससे ऊपर आपका GPA है, so you become eligible, right? You can submit this form, right? So fifth requirement यहाँ पे जो mention है बहुत ही यूनिक requirement है, जनरली ये देखने को नहीं मिलती. आइए इसको समझते हैं कि कैसे आप इस requirement के थ्रू एक waiver के लिए eligible हो सकते हैं. That is in response to the thousands of highly skilled people who have recently lost their jobs in the tech industry, Boston University Questrom School of Business will offer candidates laid off by a US tech company an application GRE GMAT test waiver, which means आप एक US tech company में काम करते थे and you have been laid off, आपकी नौकरी चली गई अनफॉर्चुनेटली, सो देन ऑल्सो यू बिकम एलिजिबल. अब यहाँ पे बहुत क्लियरली देखिए, ये नहीं लिखा है कि मेरी नौकरी कब चली गई. मेरी नौकरी हो सकता है अभी 2023 में गई हो सकता है 2020 में मेरी नौकरी चली गई हो बिकॉज ऑफ कोविड, राइट. सो इस चीज पे थोड़ा सा ओपन एंडेड है ये चीज यहाँ पे. बट इफ रिसेंटली यू हैव बीन लेड ऑफ बाय अ यूएस टेक कंपनी, देन डेफिनेटली यू शुड बी एलिजिबल फॉर सबमिटिंग दिस वेवर रिक्वेस्ट. इसके लिए आपको डेफिनेटली कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपने शो करने पड़ेंगे. आपको शायद अपना रिलीविंग लेटर या जो भी आपकी कंपनी ने आपको फाइनल फॉर्मल कम्युनिकेशन भेजा है ऑफ यू बीइंग लेड ऑफ, तो वो आपको सबमिट शायद करना पड़े एज अ प्रूफ टू बिकम एलिजिबल. आगे चलते हैं, सेक्शन में देखते हैं व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स आर देयर दैट आर यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट. सबसे पहले है योर रेज्यूमे, देन योर बैचलर्स ट्रांसक्रिप्ट, अनऑफिशियल एडिशनल ट्रांसक्रिप्ट अगर आपके पास है वो आप अपलोड कर सकते हैं. प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, एंड एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड इफ एप्लीकेबल. सो फॉर एग्जांपल जो हमने फिफ्थ रिक्वायरमेंट अभी डिस्कस किया था ऊपर, विच इज इफ यू आर बीइंग लेड ऑफ बाय यूएस टेक कंपनी, तो आप अपना एक प्रूफ डेफिनेटली सबमिट करना चाहेंगे एडमिशन कमेटी के सामने कि दिस इज द प्रूफ, एंड इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आई हैव बीन लेड ऑफ एंड आई बिकम एलिजिबल फॉर दिस काइंड ऑफ वेवर, राइट. सो you should definitely upload these requirements. Then there are some confirmation and acknowledgement. You should definitely read through क्या terms and condition है. You should select, please confirm that you have read and understand the statement above, and then definitely have you already submitted an application or not. ये आप select कर सकते हैं. But जैसा कि मैंने ऊपर बताया, ऊपर clearly लिखा था that पहले आपको अपना waiver submit करना है, and waiver submit करने के बाद waiver request submit करना है, and waiver request submit करने के बाद आपको जो है अपना application submit करना है using the same credentials जो हम यहाँ पे भर रहे हैं. So that is exactly how you can submit a waiver request if you are applying to a full-time MBA program at Boston University, the Questrom School of Business. Now आगे चलते हुए and covering our third program, that is the third MBA course, again a top 100 university option choice that you should definitely go for and look forward. आप explore कर सकते हैं इस option को जहाँ पर you can definitely apply with the waiver for an MBA program for fall 24. So coming to our third option, that is your University of Virginia Darden School of Business. Again a very well ranked, very well reputed university in USA. इसमें अगर आप देखें इस पेज में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, so there's a step by step guide to the application process, right? So इसकी बात मैंने पहले previously काफी सारे वीडियोस में करी है. जब मैंने एप्लीकेशन अभी रिसेंटली मैंने एक बॉस्टन MBA का एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाया था, उस पर काफी सारे लोगों को पर्सनली DM आए हैं, मुझे कमेंट्स आए हैं that it was a very good video and we should continue making those kind of videos. So you should definitely check that out. और अगर आप चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज में कवर करूं अपने वीडियोस में आगे आने वाले में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड वी विल कवर दैट वीडियो. सो स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द एप्लीकेशन प्रोसेस में डिटेल में इस वीडियो में नहीं कवर करूंगा. आई विल स्टिक टू द बेसिक जो हमारा है, विच इज हाउ यू कैन सबमिट अ टेस्ट वेवर, राइट. सो कमिंग टू द फोर्थ सेक्शन दैट इज मेंशन दैट टेक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और सबमिट टेस्ट वेवर. इस सेक्शन को हम एक्सपैंड करते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है. सो एज यू कैन सी they accept a number of standardized tests, that is GMAT, GMAT Focus, GRE, Executive Assessment, MCAT, LSAT, etc. Then नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे स्कूल कोड्स भी दिए गए हैं, यानी जिन लोगों को अपना GMAT, GRE, GMAT, ETS, TOEFL, IELTS वगैरह रिपोर्ट करना है तो क्या कोड्स के साथ वो
सबमिट कर सकते हैं। इसी में आप नीचे आएंगे तो देखिए एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वेवर एप्लीकेशन सेक्शन है। नाउ इस सेक्शन पे हमें ध्यान देना है एंड सारे अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। So for some candidates, a test score may not be needed for our admissions committee to assess their preparedness for Darden. Waiver applications will be evaluated on a case-by-case basis, and our admissions committee will consider a number of factors when evaluating these applications, which means it is not generic. Case-by-case basis पे आपका जो waiver है उसका decision आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट्स है उनको वेवर उठा के दे दिया, ऐसा नहीं है। केस बाय केस बेसिस पे आपकी प्रोफाइल देखी जाएगी, आपकी प्रोफाइल समझी जाएगी। अगेन जैसा मैंने पहले बताया कि आपको बहुत सारी क्वांटिटेटिव चीजें आपने करी होनी चाहिए, आपका कोर्स क्वांटिटेटिव होना चाहिए, आपका जो सर्टिफिकेशंस है वो क्वांटिटेटिव होनी चाहिए, और आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी क्वांटिटेटिव फील्ड में होना चाहिए। तो इससे आपके चांसेस बेटर हो जाते हैं ऑफ गेटिंग अ वेवर। आगे चलते हैं। सो अब हम आते हैं नीचे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वेवर एप्लीकेशन सेक्शन पे। सो फॉर सम कैंडिडेट्स अ टेस्ट स्कोर में नॉट बी नीडेड फॉर आवर एडमिशंस कमिटी, यानी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो वेवर के साथ अप्लाई कर सकते हैं, वेवर उनको मिल सकता है। वेवर एप्लीकेशंस विल बी इवैल्यूएटेड ऑन अ केस बाय केस बेसिस, व्हिच मींस जैसा हमने अभी पिछले केस में देखा, बॉस्टन में बहुत ही फिक्स आपको 4-5 रिक्वायरमेंट्स थी कि जो ये एलिजिबिलिटी मीट करते हैं सिर्फ वो ही वेवर सबमिट कर सकते हैं, बट यहां पे क्लियरली कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, जिनके मन में कोई डाउट है कि कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में वो फिट नहीं होते हैं तो वो कहां अप्लाई कर सकते हैं। वो डेफिनेटली यहां पे एक वेवर एप्लीकेशन अपने एडमिशन कमेटी को मेल कर सकते हैं, वेवर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, एंड देयर आर हाई चांसेस कि आपको शायद वेवर मिल जाए, बिकॉज यहां पे जो वेवर है वो आपका इवैल्यूएट होता है और केस बाय केस बेसिस पे, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम मैं प्रीवियसली वीडियो में बता चुका हूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इससे रिलेटेड जो आपने डिग्री करी है या कोई सर्टिफिकेशंस हैं या आपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किया है, तो वो अपना आप हाईलाइट करें, उससे आपके जो चांसेस हैं वो बेटर हो जाते हैं। एंड इसके अलावा वर्जीनिया में कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स नहीं है ऑफ गेटिंग अ वेवर। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो? आई होप यू हैव टेकन नोट्स फॉर ईच एंड एवरी स्टेप वी कवर्ड इन डिटेल। इन अ नटशेल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चेक ऑल द डिटेल्स very diligently and always double cross check the details before submitting the application. I'm sure now you have absolute clarity on how to get a GRE or a GMAT waiver. अगर आपको भी इन 3 top schools में अपनी applications करनी है for September 2024 intake. Moreover, I want you to comment down below for which schools do you need such application explainer videos, and me and my team will make sure we will keep on adding such informational videos for you regularly. Friends, ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि you need step by step unbiased guidance for your study abroad process, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक ऐड किया है जिस पर क्लिक कर आप एक फ्री स्टडी अब्रॉड स्ट्रैटेजी सेशन रख सकते हैं विद आवर एक्सपर्ट्स, जहां पर you will get 3 things. First, a list of top 5 universities that you should apply to as per your profile. Second, courses with best possible ROI. Third, salaries and job prospects post your studies abroad. So click on the first link in the description to schedule your study abroad strategy session. And video अगर informative लगा तो please subscribe, like and share with your friends जो अपना study abroad process करना चाहते हैं, and they might end up getting tons of informational advice. So stay tuned for more informational videos.